Jai Shri Hari, Namaste, good evening. Welcome everyone. Welcome to day 9 of Gupt Navratri live discourse series by Brahmachari ji, Brahmachari ji Parak Om. So welcome here, and it is my honor to bring forward this series on behalf of Tantra Sadhana and Vedic Sadhana Foundation. So most of you have been here from day one. We really thank you for your support and for your presence. If at all you are happening to join today newly, my name is Vikram Shastri. I represent Vedic Sadhana Foundation, the non-profit founded by Sri Om Swami, whose aim and mission for VSF is to revive Vedic practices through the means of technology. So if you don't have Tantra Sadhana app installed on your device, please, after the session, go forward and install it. And if you're not already a part of Tantra Circle, the community of Tantra seekers, please do join Tantra Circle. And on behalf of Tantra Circle and Tantra Sadhana, this event is being mooted, and we are on day 9. So congratulations and pat on the back for performing the sadhana all these days, and being joyously and rejoicing in the devotional sentiment of Ma. So we have one more day to go, which is tomorrow, and that is going to be a grand day. So we will have a lot of important announcements to make tomorrow, and of course, a grand closure, so to say. Having said that, we are all here today, and today is a Wednesday, and you're all here. So really, it means a lot for you to give your mind share time and support to uh, this particular event, and also for using the app, performing the Dhyan sloks. Tomorrow, we will share with you the numbers of how many of us have put in the time, performed the slok, how many of us have called how many times to Ma through the various activities and rituals done in the app. I think it'll be joyous for all of us to know that as to how many of us, as to so many of us came together to invoke Ma in the app. This reminds me, as many of you know, who are Swamiji's devotees, Swamiji had announced long ago a concept called pin-prick effect. Pin-prick effect. The idea behind this, Swamiji said, is it takes the number of cells in the body that has to be impacted for the attention of the body or the attention of the mind to go towards it is equivalent to the number of cells that get impacted by the prick of a pin. You take a pin and you prick yourself, some X number of cells get impacted. And that's the minimum number of cells that must be impacted for our attention to go there. Anything lesser than that, our attention might not even go into that particular part of the body. We scratch ourselves, we move, we touch different parts of the body when we are moving around, but our attention doesn't go to that part of the body. But the moment a pin prick happens, our entire attention goes there. So Swamiji said that if enough of us come together to perform rituals, meditation, etc., at the same time, on the same, let's say, theme, if you will, then it acts like a pinprick, and it attracts the attention of the universe, of the divine. In a way, through Tantra Sadhana, through Tantra Circle, through this event, what we are trying to do is exactly the same. If there are enough people coming together, chanting her name, invoking her, inviting her, then it is going to have hopefully a deeper impact and a pull and a call to invite her grace, her presence, her attention towards all of us when compared to us doing it alone. So in a way, without our knowledge, as a collective, we have been calling upon Ma for the last 9 days, and we will continue to do so as well. And it will be good to know how we have fared in terms of numbers, in terms of what we have done, which we will share with you tomorrow. I thought I'll just share with you before inviting Brahmachari ji to take us through today's session of Ma Matangi. In fact, again, in the app,
we have a very unique sadhana for Mama Tangi. It's called the ant feeding sadhana. So, where one goes around through a forest feeding ants. It was a very peculiar sadhana, and we were very inquisitive to ask Swamiji the mahatva, the importance of this sadhana as to why one has to do this. We will have this discussion when we have separate workshops on each of the sadhanas of each Mahavidyas that we are planning for. So we are starting workshops for Ma Kali, for Ma Tara, for Ma Tripura Sundari, where we will dive behind the meanings of the mantras, the fire offerings, the ingredients. Some of you, even now have a doubt. Why offer the fish? Why offer that, alcohol or something else? And what is the importance behind that? And similarly, what are all the different steps involved in performing the sadhana? And why should, well, the question why keeps coming to our minds, and it's important to know the reasoning. All of this and more will be covered in the workshops, which we will be doing very much like this in the coming days. So stay tuned, and which is why you should be a part of the Tantra Circle group if you aren't, because we'll announce there and conduct these sessions. Now, without further ado, I invite Brahmachariji. Brahmachariji pranams. Jai welcome to today's session. Over to you. थैंक यू सो मच विक्रम। जय श्री हरि। नमस्ते एवरीवन। फाइनली हम एक पड़ाव की ओर पहुंच रहे हैं जहां पर हमारी ये वर्कशॉप, हमारे ये सेशंस, हमारे ये विजुअलाइजेशन के तौर पर जो एक काइंड ऑफ साधना की यात्रा पर हम निकले हैं थ्रू देवी माँ ध्यान श्लोक्स। तो उसका एक गंतव्य स्थान, एक डेस्टिनेशन जो है वो आने वाला है। और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि देवी माँ की इतनी कृपा है हम सबके ऊपर कि हम 10 के 10 दिन, इंक्लूडिंग अमावस्या और नवरात्र के 9 दिन, हम उनका नाम ले पाए। बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि देवी माँ की कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी अनुकंपा के बिना, उनके अनुग्रह के बिना, उनका नाम लेने की बात तो बहुत दूर तक की है, किंतु उनका नाम सोचा तक नहीं जा सकता, उनके बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती यदि उनकी इच्छा ना हो। सो देर इज अ ब्यूटिफुल वर्स इन श्री ललिता सहस्त्र नाम, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति स्वरूपिणी। अर्थात माँ स्वयं इच्छा शक्ति है। यदि आपके भीतर ये इच्छा प्रकट हुई कि मुझे तंत्र साधना ऐप पर माँ के ध्यान श्लोक के माध्यम से उनके साथ एकाकार होना है, उन्हें अपने अंतर मन में धारण करना है, ये इच्छा कहाँ से आई? यदि आप हर रोज शाम को या रात को लाइव या फिर रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं ऑन तंत्र टॉक्स यूट्यूब चैनल, ये प्रेरणा कहाँ से आई कि मुझे ये जो सेशंस हैं वो अटेंड करने हैं, उसे देखने हैं, माँ की भक्ति में मुझे एक रूप होना है? ये जब माँ की शक्ति स्वयं स्थापित हुई इच्छा शक्ति के स्वरूप में, द एनर्जी ऑफ डिजायर, एक इच्छा के स्वरूप में माँ आपके भीतर विद्यमान हुई, स्थापित हुई, प्रतिष्ठित हुई, उस समय पर यह संभव हो पाया। उसके बाद ज्ञान शक्ति। अब आपने ये तो तय कर लिया कि प्रेरणा मिल गई कि मुझे ये भक्ति करनी है, 10 महाविद्याओं की साधना की दिशा में आगे बढ़ना है, किंतु अब प्रैक्टिकलिटी में क्या किया जाए, प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाए? तो आपने ये देखा कि अच्छा, एक तंत्र सर्कल नाम से ग्रुप बना हुआ है, वहां पर हमें जाना होगा, वहां से लिंक प्राप्त होगी, उस लिंक के माध्यम से इतने बजे डेली हमें 8 बजे इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जुड़ना है और हमें ये लाइव जो है वो देखना है। ये हुआ ज्ञान, नॉलेज, एक प्रकार का विस्डम, एक ऐसा नॉलेज जिसके माध्यम से आपकी जो इच्छा थी वो आगे बढ़ पाई इम्प्लीमेंटेशन की ओर, यानी कि क्रिया की ओर, कर्म की ओर, कार्य की ओर। ये जो बीच का फेस था, यहाँ पर आपको ज्ञान मिलना बहुत जरूरी था। मान लीजिए आपको लिंक ही ना मिले किसी दिन पर, मान लीजिए आप जुड़ना चाहते हैं किंतु आपको पता ही ना हो कि कहाँ पर जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, आपके पास नॉलेज ही ना हो इस बात का कि यूट्यूब को कैसे यूज करना है, या फिर आपको यही पता ना हो कि यूट्यूब जैसी कोई एप्लीकेशन भी होती है, या फिर आपके पास कोई उपाय ही ना हो, मोबाइल या फिर कोई डिवाइस ना हो जुड़ने के लिए, तो क्या करेंगे आप?
तो ये जो शक्ति विद्यमान हुई जिसके माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हाँ, अब मुझे मेरे मन में जो इच्छा प्रकट हुई है उसे मुझे कार्य की ओर लेकर जाना है, इम्प्लीमेंटेशन की ओर लेकर जाना है, ये ज्ञान स्वयं माँ आदि पराशक्ति थी। और उसके बाद द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ डिवाइन मदर, दैट इज क्रिया शक्ति। आपने इच्छा व्यक्त कर ली ब्रह्मांड के समक्ष, यूनिवर्स के सामने। उसके बाद आपने ही ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, नॉलेज ले लिया कि मुझे यहाँ पर जुड़ना है, ऐसे करना है। मान लीजिए आप 8 बजे जुड़ ही ना पाते, बहुत इच्छा होने के बावजूद आपको हर रोज कोई ना कोई काम आ जाता, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती जिसके कारण आप 8 बजे हमारे साथ जुड़ ना पाते, या फिर पूरे दिन के दौरान रिकॉर्डेड सेशन जो है वो देख ना पाते यूट्यूब के ऊपर, तो आपकी ये साधना कैसे आगे बढ़ती? तो क्रिया तक लेकर जाने के लिए आपने स्वयं प्रयास किया कि डेली 7:30 7:45 तक मैं फ्री हो जाऊंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि 8 बजे मैं शार्प यहाँ पर इस सेशन में जुड़ूं, या फिर रिकॉर्डेड सेशन को देखूं रात को, या फिर अपने अपने टाइम जोन के हिसाब से सुबह, दोपहर, शाम को। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अब जुड़ना है, आपको कार्य करना पड़ा, आपको उस लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करना पड़ा, यूट्यूब के ऊपर आना पड़ा, और ये लाइव जो है वो आप देख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास इंटरनेट ही ना होता, किसी कारणवश आप अपने घर के वाईफाई को या फिर डेटा को यूज ही ना कर पाते, चाहते हुए भी आप ज्वाइन ना कर पाते, तो फिर वो क्रिया शक्ति जो है वो विद्यमान नहीं हुई। आप कार्य कर पाए, आपसे ये कर्म हुआ, आप डेली यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, उसका सीधा स्पष्ट अर्थ ये है कि देवी माँ की जो क्रिया शक्ति है वो ऊर्जा आपके भीतर विद्यमान हुई, तब हम सब ये कार्य कर पाए। इमेजिन द वास्ट स्कीम ऑफ द यूनिवर्स, इनफाइनाइट यूनिवर्स। देवी माँ की इच्छा के बिना, उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के बिना, उनके द्वारा प्रदान की गई शक्ति के बिना, क्रिया के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम तो क्या ही चीज है। तो इसी कारण से आई फर्मली बिलीव कि माँ की अनुकंपा यदि हम सबके ऊपर ना होती तो हम सब आज यहाँ पर इस पड़ाव पर, इस मुकाम तक ना पहुंचे हुए होते। सो ऑन दैट नोट वुड लाइक टू इन्वोक डिवाइन मदर। सो एक बार हाथ जोड़ लीजिए और देवी माँ से प्रार्थना करते हैं, उनको जागृत करते हैं, उनसे फिर से एक बार उनको पुकारते हैं, उनका ध्यान करते हैं कि आप आज के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, अपनी अनुकंपा हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। ओ सर्वबाधा प्रशमनम् त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरीविनाशनम्। ओ सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर मन में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी देवीय प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ओम श्री मात्रे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। इदं गुरवे इदं नमः। देवी माँ मातंगी। सबसे पहले तो एक थोड़ा जो सुपरफिशियल एस्पेक्ट है देवी माँ का, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। माँ मातंगी को कहा जाता है अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से, तंत्र शास्त्र के हिसाब से, खास करके हमारे जो मूल तंत्र शास्त्र है, तंत्र राज तंत्र, महानिर्वाण तंत्र और रुद्रयावलम तंत्र, इनमें माँ मातंगी को तांत्रिक सरस्वती भी कहा गया।
नील सरस्वती भी कहा गया, उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहा गया, और राजमातंगी भी कहा गया। इन सब के अपने अपने एस्पेक्ट हैं जो देवी माँ के साथ जुड़े हुए हैं। और नील सरस्वती ये जो नाम है, ये नाम कनेक्टेड है देवी माँ तारा के साथ भी। उनका भी जो एक स्वरूप है वो नील सरस्वती है। तो माँ तारा के 3 स्वरूप के बारे में शायद हमने बात की थी, शायद नहीं की थी। एक जटा, नील सरस्वती और उग्र तारा। तो ये जो 3 स्वरूप है माँ के, उनमें भी एक नाम देवी माँ का है नील सरस्वती। वैसे ही मातंगी माँ का जो नाम है वो भी नील सरस्वती है। ज्ञान की देवी है, प्रचंड ज्ञान की देवी है, त्वरित ज्ञान की देवी है, महाज्ञान की देवी है। जब हम बात कर रहे थे ललिता सहस्त्रनाम के उस एक श्लोक की, महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी। एक समय साधक के जीवन में ऐसा आता है जब प्रत्येक साधक को ये तय करना होता है कि मुझे भौतिक समृद्धि की दिशा में जाना है, भौतिक संपदा को प्राप्त करना है, या फिर मुझे एक प्रखर बुद्धिमान होकर कहीं ना कहीं देवी माँ की दिशा में आगे बढ़ना है, उनकी प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना है। क्या मुझे खिलौने चाहिए माँ की ओर से, या फिर मुझे माँ ही चाहिए? तो ये जो निर्णय लेने की घड़ी आती है, उस समय पर बड़े बड़े साधक अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बड़े बड़े साधक, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि कई लोग, कई साधक ऐसे हैं जो समय आने पर फेम को चूज करते हैं, प्रसिद्धि को चूज करते हैं, अपनी साधना की यात्रा को आधे रास्ते में ही छोड़ देते हैं। समाज में ऐसे कई सारे पॉपुलर साधक हैं आज की तारीख में भी, जिन्होंने यदि अपने मार्ग पर चलना जारी रखा होता तो एक प्राप्ति की संभावना बहुत ज्यादा थी उनके किस्से में। किंतु वैसा नहीं हुआ। एक घड़ा जब कच्चा हो और अधपका हो, जब उसे, जब तक पूरी तरीके से पकाया ना गया हो, और अगर आधे प्रक्रिया के बीच में ही उसे यूज में लेना शुरू कर देना, तो शुरुआती समय में वो घड़ा जो है वो अपना काम करेगा, लेकिन उसकी जो एक आयु है, उसकी जो काम करने की क्षमता है, उसकी जो अ, एक लॉन्ग लास्टिंग कैपेसिटी है, वो बहुत कम होगी। घड़े को यदि अच्छे से आपको यूज में लेना है तो पहले उसे अच्छे से पकने देना होगा, उसे उसे अच्छे से तपाना होगा, अग्नि से उसे गुजारना होगा। यदि स्वर्ण को धारण करना है, सोने के अलंकार को पहनना है, आभूषणों को पहनना है, तो पहले उसे अग्नि से अच्छे से तपाना होगा। उस स्वर्ण को, उस सुवर्ण को अग्नि से तपना होगा। यदि वो नहीं तपा तो आपके कोई काम का नहीं, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो आज की तारीख में। तो यही बात साधक के किस्से में भी लागू होती है। यदि समय रहते साधक के भीतर ये महाबुद्धि प्रकट ना हो, महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी, ये जो चौथा फेज है, 5वां फेज, वो ऐसा है जहां पर आपको बुद्धि के साथ काम लेना पड़ता है। किंतु हमने शुरुआत में जो बात की कि माँ की इच्छा के बिना यदि पत्ता भी नहीं हिलता तो ये बुद्धि प्राप्त होना भी संभव नहीं है। तो यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है और एक समझदारी के साथ आगे बढ़ना है कि मुझे माँ की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जो बुद्धि प्रदान होती है वो देवी माँ मातंगी के द्वारा दी जाती है। जब आप 9वें पड़ाव पर पहुंचते हैं, माँ मातंगी तक पहुंचते हैं, क्योंकि मातंगी के बाद तो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है माँ कमलात्मिका के स्वरूप में। फिर कुछ बाकी नहीं रहा साधना करने के लिए, तप करने के लिए। आपने साध लिया सब कुछ। जो कठिनाइयां हैं वो माँ मातंगी तक की ही हैं। और यही पड़ाव पर आपको महाबुद्धि जो है वो माँ मातंगी, जो तांत्रिक सरस्वती है, सरस्वती माँ का एक अभिन्न अंग है, वही आपको प्रदान कर सकती है। और एक कुमारी के स्वरूप में है, कुमारी के स्वरूप में है, मैडन, बहुत सुंदर। किंतु ये जो स्वरूप है
वो अपने आप में बहुत कुछ सूचित करता है आपको। जब यंग होते हैं, जवान होते हैं, तब अदम्य उत्साह होता है, जोश होता है, मन में भी, शरीर में भी। ये उसी बात को व्याख्यायित करता है। यदि इस पड़ाव तक पहुंचे, फिर माँ स्वयं सुनिश्चित करती हैं कि आपके मन को कैसे रिजुविनेट किया जाए, कैसे नवपल्लवित किया जाए, आपके मन में, आपके शरीर में कैसे एक नए जोश को एड ऑन किया जाए। वो कृपा ऐसे परसती है फिर कि आपके जो काम है वो अपने आप होते रहते हैं। फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि ये काम कैसे होगा। यदि इंटेंशन प्योर है, तो देवी माँ साक्षात ये सुनिश्चित करती हैं कि आपको वो ऊर्जा प्राप्त हो, आपको वो बल प्राप्त हो, आपको वो बुद्धि प्राप्त हो, जिससे आप अपने मनवांछित कार्य को संपन्न कर पाए, पूर्ण कर पाए, संपन्न कर पाए। यही स्वरूप जो है वो दर्शाता है कि बुद्धि के माध्यम से ही आप ऐश्वर्य तक पहुंच सकते हो, ना कि ऐश्वर्य के माध्यम से बुद्धि तक। क्योंकि अगर बुद्धि है, तो ये समझ भी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और समाज में जीने के लिए, अच्छे से अच्छे सुख के भोग के लिए, पहले तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना है जीवन में। यदि इतना तय है, तो फिर बाकी का अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। यदि यही नहीं पता कि क्या नहीं करना है, तो फिर दिक्कत है, आपत्ति है, चिंता की बात है। देवी माँ मातंगी का ये जो स्वरूप है, उनकी कथा जो ओरिजिन है वो मतंग ऋषि के द्वारा प्राप्त होता है। मातंग अथवा मतंग। तो ये जो ऋषि थे, उनके मन में एक बार इच्छा प्रकट हुई कि मुझे जीवों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना है। अगर सुपरफिशियल लेवल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तामसिक भाव था कि हमें जीवों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना है, मुझे कंट्रोल चाहिए सबके ऊपर, क्रीचर्स के ऊपर। किंतु थोड़ा डीपर मीनिंग देखा जाए, तो ये था कि मुझे सभी के बुद्धि में निवास करना है, मुझे वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस बनना है, जो सर्वोच्च चेतना है, उस अवस्था तक पहुंचना है जिससे मैं सभी प्राणियों में निवास करूं। तो दो अर्थ होते हैं कथाओं के। एक सरफेस लेवल का जो मीनिंग होता है, वो सुपरफिशियल मीनिंग, जिसके माध्यम से, जिसे पढ़ने मात्र से आपको लग सकता है कि अरे, ऋषि होने के बावजूद, इतने महान ऋषि होने के बावजूद ऐसी इच्छा कि मुझे जीवों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना है, कंट्रोल चाहिए मुझे सृष्टि का। किंतु जब आप थोड़ा और गहराई से इसका मनोमंथन करते हैं, इस कथा का, देन यू रियलाइज कि वास्तव में वो क्या चाहते थे। और हमारे शास्त्रों की एक सुंदरता ये रही है कि जो जो कथाएं दी गई हैं, उनके अपने एक बहुत ही ज्यादा गहराईपूर्ण अर्थ है, जिसे तभी समझा जा सकता है जब आप एक साधक के स्वरूप में आकर सोचे। यदि आप एक पाठक के तौर पर मात्र एक एज अ रीडर कथाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो शायद वो सिर्फ आपको एक सुपर नेचुरल स्टोरी लगे, नॉवेल की तरह। यदि आप उन कथाओं को साधक के स्वरूप में आकर पढ़ना शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, पुराणों की सभी कथाएं और जो भी वेदों का ज्ञान है, वो सभी आपको एक अलग दृष्टिकोण से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो जो स्वरूप है देवी देवताओं के, वो आपको एक अलग दृष्टिकोण से दिखना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। और ये पूरा प्रयास जो है वो यही है, पिछले 9 दिन से हम यही करना चाहते हैं। उद्देश्य ही यह है कि एक साधक को तैयार किया जाए आपके स्वरूप में। यहाँ पर कोई ये मोटिव नहीं है कि तंत्र साधनाएं पर ट्रैफिक बढ़ाना है, या फिर हमें और ज्यादा बड़ा क्राउड चाहिए और लोग चाहिए। स्वामी जी ने वो कभी इच्छा रखी ही नहीं। यदि वो करना होता, 2011 से वो कर चुके होते। 15 साल के भीतर आप में से कितने लोग ऐसे थे जिनको पता था कि स्वामी जी एग्जिस्ट भी करते हैं इस प्लानेट पर? 15 साल हो गए उन्हें
इस आश्रम को चलाते चलाते, और ब्लैक लोटस से लेकर अलग अलग प्रकार के उनके उपक्रम को स्थापित हुए। उनका उद्देश्य एक ही रहा, मनुष्य को साधक बनाना। पिछले 9 दिन से जो गुरु की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से मेरा भी प्रयास रहा है, वो यही रहा है कि आपको एक साधक के दृष्टिकोण से मैं विचार करना सिखा दूं। प्रयास तो कर ही सकता हूँ, कितना सफल रहूंगा कितना विफल रहूंगा मुझे नहीं पता, वो मेरा कर्म भी नहीं है वो पता लगाना। मेरा कर्म है आपको जो मुझे प्रेरणा मिल रही है वो आप तक पहुंचाना। उसमें से कितना आप ग्रहण कर पा रहे हैं, आपके जीवन में कितना ज्यादा वो उतर पा रहा है, आप उसे कितना धारण कर पा रहे हैं, ये संपूर्णतया आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर, एक भावना के ऊपर, प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही उद्देश्य है कि एक साधक के दृष्टिकोण से सोचा जाए, साधक के दृष्टिकोण से कार्य किए जाए, साधक के दृष्टिकोण से समाज में जीना सीख जाए। यदि ये हो गया तो सनातन का जो पुनरुत्थान है वो वास्तव में होकर रहेगा। अन्यथा सिर्फ बातें होगी, अन्यथा सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाएंगे, अन्यथा सिर्फ भगवे वस्त्रों को धारण कर सुपरफिशियल लेवल पर सनातन का प्रचार होगा, लेकिन गहराई में नहीं उतर पाएंगे। तो ये जो ऋषि थे, मातंग ऋषि, उनके द्वारा तप किया गया देवी माँ का। और मैंने हर सेशन में आपको बार बार ये कहा कि प्रत्येक महाविद्या जो है वो देवी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी के साथ जुड़ी हुई है, जो श्री विद्या है उनके साथ जुड़ी हुई है। तो ऋषि मातंग ने भी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की उपासना की श्री विद्या साधना के माध्यम से। जब उनकी साधना संपन्न हुई, संपन्न होने पर देवी माँ ललिता साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई। देवी माँ ने पूछा कि क्या वरदान चाहिए वत्स। तब ऋषि ने कहा कि मुझे जीवों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करना है। उस समय पर देवी माँ ने ये पूछा नहीं कि क्यों करना है, क्योंकि एक माँ को तो सब कुछ पता रहता है, उनके सामने कोई चालाकी नहीं चलती, कोई चतुराई नहीं चलती। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही थी रिसेंट डिस्कोर्स के अंदर, कि आपको क्या लगता है कि जो साक्षात निर्विकारा है, निरंजना है, निर्लेपा है, उनसे आप चालाकी कर पाएंगे? उन्हें आप मंत्रों से बांध पाएंगे? उन्हें आप ये धारणा करके अपनी ओर खींच पाएंगे कि मैं इस मंत्र का इतनी बार उच्चारण कर लूंगा और देवी माँ खींची चली आएंगी? यदि ऐसा होता तो आज भारत में इतने करोड़ों संत हैं, सभी सिद्ध होते। किंतु परिस्थिति और वास्तविकता बहुत भिन्न है। देवी माँ ने पूछा नहीं उस समय पर, क्योंकि शी न्यू द इंटेंशन बिहाइंड द पेनेंस जो ऋषि के द्वारा हुआ था। उन्होंने तथास्तु भी नहीं कहा, क्योंकि हमने जब तीसरा सेशन था उस टाइम पर ये बात हमारी हुई थी कि देवी माँ, एक भी हाथ उनका जो है देवी माँ का वो अभय मुद्रा में नहीं है। उनका होना ही अभयता का वरदान है, उनका होना ही एक वरदान स्वरूप अ, बात हो चुकी है। तो देवी माँ ने तुरंत, उनकी आंखों से जो है वो प्रचंड तेज प्रकट हुआ। उस तेज से जो तेजस्वी तेजो पुंज निकला, वहां से माँ काली का प्राकट्य हुआ। और माँ काली ने स्वरूप धारण किया माँ मातंगी का, जो स्वरूप था हरे रंग का। और ये जो हरा रंग है वो माँ ललिता के साथ भी कनेक्टेड है। माँ को ग्रीन कलर बहुत पसंद है। उनके कंधे के ऊपर भी एक पैरट है, एक तोता, एक पोपट, जो हरे रंग का है, जो सूचित करता है कि हमें निरंतर देवी माँ का स्मरण करते रहना है, उनका नाम लेते रहना है, हमें कभी रुकना नहीं है जीवन में। यदि रुके तो माँ से दूर हो जाएंगे। तो वो तोता जो है वो यही सूचित करता है, ये जो हरा रंग है वो कहीं ना कहीं देवी माँ की एक प्रकृति का एस्पेक्ट दर्शाता है। इस संसार में, पूरे विश्व में, पूरे प्लानिट पर, पूरी धरती पर, जहां जहां पर प्रकृति है उसका रंग हरा ही है।
ये जो हरियाली हम अपने आसपास देखते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पति औषधि, इनका रंग हरा है। बेज में, मूल में जो रंग है समस्त प्रकृति का, वो हरा रंग है। इसी कारण से माँ ललिता को हरा रंग जो है वो नितांत प्रिय है, क्योंकि वही प्रकृति है, प्रकृति स्वरूपा है। मूल प्रकृति अव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी, ललिता सहस्रनाम में कहा गया। जो मूल प्रकृति है वो अव्यक्त है, उन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। और यही दर्शाती है, क्योंकि मूल प्रकृति जो है उसका कोई आकार नहीं होता, उनका कोई स्वरूप नहीं होता, वो सर्वव्यापी है, सर्वाधारा है, सुप्रतिष्ठा है, सदसद्रूप धारिणी है। इन्होंने सब कुछ धारण करके रखा हुआ है अपनी गोद में। ये जो हरा रंग है वो उसी प्रकृति को दर्शाता है। ये पूरी पृथ्वी जो है वो उससे घिरी हुई है, आच्छादित है। अब सोचकर देखिए, क्या आप वनस्पति को एक आकार दे सकते हैं? क्या आप उन्हें कह सकते हैं कि ये जो एक पूरा पैच है वनस्पति का या फिर वृक्षों का या फिर ये जो जंगल है, उसे आप देवी माँ के स्वरूप में कैसे ढाल पाएंगे? वैज्ञानिकों के द्वारा आज की तारीख में भी प्रकृति के प्रत्येक एस्पेक्ट को नहीं खोजा गया। हमें पता ही नहीं है कि प्रकृति जो है वो कितना और गहराई से अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अमेजोन के जंगल, कितने सालों से खोजबीन चल रही है, कितने सालों से जांच चल रही है, कितने सालों से एक्सप्लोरेशन चल रहा है, किंतु अमेजोन के जंगलों तक आज तक उसके मध्य में कोई भी नहीं पहुंच पाया। हमें ये तक पता नहीं है कि इस धरती के ऊपर आज की तारीख में कितनी स्पीसीज हैं, कितने जीव हैं। अमेजोन के जंगलों में कितने लोग रहते हैं, कितने कितनी प्रजातियां रहती हैं अलग अलग प्रकार के जीवों की, पशु प्राणी पंछी कीटक, हमें नहीं पता। इसीलिए ललिता सहस्त्रनाम में करोड़ों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने कह दिया, मूल प्रकृति अव्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी। संभव ही नहीं है कि आप देवी माँ को व्यक्त कर पाओ, उनसे आप एक उनके स्वरूप को अभिव्यक्त कर पाओ या फिर उनके स्वरूप का सार सारांश प्राप्त कर पाओ। अनंता है, अग्नेया है। जब देवी माँ प्रकट हुई तब दुर्गा सप्तशती में देवताओं के द्वारा पूछा गया, हे देवी आप कौन हैं? सर्वे देवा ब्रुवन काशी त्वम महादेवी थी। हे महादेवी, आप कौन है, आपका स्वरूप हमें नहीं पता, आपके स्वरूप के बारे में कुछ बताइए हमें। उस समय पर देवी माँ ने कहा, सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही तो हूँ पर ब्रह्म स्वरूपिणी, मैं ही तो हूँ इस सचराचर जगत की अधिष्ठात्री, मैं ही तो हूँ वो ब्रह्म स्वरूपा जिन्हें आप देख नहीं पाते, मात्र महसूस कर पाते हैं। हवा को आप देख नहीं पाते, महसूस कर पाते हैं। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, पुरुष और प्रकृति से बने इस समस्त जगत के अधिष्ठात्री मैं ही स्वयं हूँ। शून्यम चा शून्यम च, मैं शून्य भी हूँ अशून्य भी हूँ। अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चा शून्यम च, अहमानंदानानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये, अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। मैं आनंद भी हूँ, अनानंद भी हूँ। मैं विज्ञान भी हूँ, अविज्ञान भी हूँ। पंचभूत से बने ये समस्त संसार की अधिष्ठात्री भी मैं हूँ, और जो अपंच महाभूत हैं, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप कल्पना तक नहीं कर सकते, उस अपंच महाभूत के अधिष्ठात्री भी मैं स्वयं हूँ। हम अखिलम जगत, मैं ही इस अखिल निखिल जगत की निखिलेश्वरी हूँ, माहेश्वरी हूँ। मैं ही हूँ परब्रह्म स्वरूपिणी। वेदोहम विद्याहम विद्याहम, अजाहम न जाहम, अदश्च ऊर्ध्वम च तिर्यक् चाहम।
माँ ने कहा, वेद भी मैं हूं, अवेद भी मैं हूं, विद्या भी मैं हूं, अविद्या भी मैं हूं। आप यदि ये सोच रहे हैं कि मैं बिलीवर हूं, तो उसमें भी मेरा वास है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं एथिस्ट हूं, उस एथिस्ट में भी मेरा वास है। अविद्या, वो भी मैं स्वयं हूँ। विद्याहम अजाहम न जाहम, उधश्च ऊर्ध्वम च तिर्यक चाहम। ऊपर भी मैं हूँ, नीचे भी मैं हूँ, सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं जन्मा भी हूँ, अजन्मा भी हूँ। तब जाकर देवों को ये कहना पड़ा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्ये भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। हे माँ आदि पराशक्ति, आपको बारंबार नमन है, आपको प्रणाम है। उस अधिष्ठात्री को, उस सर्वेश्वरी को, जो इस प्रकृति को चलाती है। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। जो शिवा भी है, जो सतत है, निरंतर है, और निरंतर इस सृष्टि के चक्र को चलाती रहती है, उस महादेवी को हम नमन करते हैं। ये वो माँ है, और इसीलिए इनके स्वरूप को व्यक्त नहीं किया जा सकता, पूर्णतया समझा नहीं जा सकता। करोड़ों सालों से करोड़ों ऋषि मुनियों के द्वारा प्रयास किए गए माँ के स्वरूप को समझने के लिए, किंतु आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिद्ध इस प्रयास में पूर्णतया सफल नहीं हो पाया। क्योंकि माँ को तभी समझा जा सकता है जब आप स्वयं माँ बने। माँ को तभी प्राप्त किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है उस ऊर्जा को, जब स्वयं आप उस ऊर्जा में संलग्न हो जाए, एकाकार हो जाए। उसके अतिरिक्त एक दृष्टा के तौर पर माँ को समझ पाना संभव ही नहीं है। जब तक डूबेंगे नहीं, तब तक तैरेंगे नहीं। अध्यात्म का ये ऐसा भवसागर है, जहां पर जिससे पार उतरने के लिए पहले डूबना होता है। ये एकमात्र ऐसा समंदर है जहां पर आप तैर नहीं सकते। यदि आपको प्राप्ति करनी है, तो डूबना होगा। अध्यात्म में, साधना में, भावनाओं में, श्रद्धा में, समर्पण से। यदि इतना कर लिया, यदि एक बार डूब गए, तो तैर जाओगे। ये सनातन का मूल सत्व है, मूल ज्ञान है। इसके अतिरिक्त बाकी सारी बातें हैं, विधि विधान है। इतना यदि समझ लिया, तो फिर प्राप्ति दूर नहीं। सो माँ मातंगी का ये जो स्वरूप है, उस प्रकृति को व्याख्यायित करता है जिनकी हम पूजा करते हैं निरंतर। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के प्रत्येक स्वरूप को पूजा। हमने गाय को माता बनाया, हमने सांप की पूजा की, चाहे वो भगवान के गले में विद्यमान वासुकी नाग हो, या फिर भगवान विष्णु के शयन के तौर पर जो शेष नाग है, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी बात हो। हमारे शास्त्रों ने एक वानर को पूजा हनुमान के स्वरूप में। हमारे शास्त्रों ने एक गिलहरी को, स्क्विरल को भी स्थान दिया, जिनके कंधे के ऊपर, जिनकी पीठ के ऊपर भगवान श्री राम ने अपना हाथ सहलाया। उन्हें भी हमने पूजनीय मान लिया। हमारे शास्त्रों ने पेड़ पौधे वृक्ष को एक पिता की संज्ञा दी, माँ की संज्ञा दी, क्योंकि वो हमारा पालन करते हैं, हमें धूप से बचाते हैं, हमें फल देते हैं। उन्हें पालक पिता के स्वरूप में एक्सेप्ट किया गया। हमारे शास्त्रों ने सूर्य को पिता बनाया, पालक पिता। प्रकृति के पंच महाभूत को, जल वायु आकाश अग्नि और पृथ्वी, अत्यंत पवित्र बना दिया हमने। हमारे शास्त्रों ने अग्नि, जो हम यज्ञ कुंड में जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उन्हें पवित्र बताया गया। आप सोच कर देखिए, सनातन क्या है? क्या आप सनातन को किसी व्याख्या में बांध सकते हैं?
क्या आप ये कह सकते हैं कि सनातन यानी इस ईश्वर की पूजा करना, ये साधना करना, ये बुक को पढ़ना, ये एक किताब क्या हमारी है? यदि आप नाग को पूज रहे हैं तो भी आप सनातनी हैं। यदि आप सूर्य को पूज रहे हैं तो भी आप सनातनी हैं। यदि आप गाय को पूज रहे हैं तो भी आप सनातनी हैं। यदि आप पेड़ की पूजा कर रहे हैं, वट वृक्ष की, वट सावित्री के ऊपर, उस पर्व के ऊपर, तो भी आप सनातनी हैं। आप गणपति की पूजा कर रहे हैं जिसका जो हेड है, जिनका मस्तक गज का है, हाथी का है, आप हाथी को पूज रहे हैं तो भी सनातनी है। शेर को पूज रहे हैं क्योंकि माँ शेर सवारी करती हैं, सिंह वाहिनी दुर्गा, तो वो भी सनातनी के तौर पर उन्हें माना जा सकता है। यदि आप बाघ को पूजते हैं, वो भी माँ की सवारी है। यदि मोर को पूजते हैं, वो भी भगवान कार्तिकेय की सवारी है। मूषक, एक छोटा सा माउस, उनकी पूजा करते हैं तो भी आप सनातनी हैं। इस संसार में प्रत्येक तत्व की पूजा करने वाले, प्रत्येक तत्व में मानने वाले अल्टीमेटली सनातनी हैं। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सनातनी ना हो, क्योंकि हम कोई एक किताब में नहीं मानते, कोई एक ईश्वर में नहीं मानते, कोई एक तत्व में नहीं मानते। हमारे लिए ये पूरा संसार ही ईश्वर है। और इसीलिए हमारे द्वारा ये कहा गया, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरी पृथ्वी को, पूरी वसुधा को ही अपना परिवार मानते हैं। ये हमारी माँ है, ये हमारे पिता है, ये हमारे भाई है, ये हमारी बहन है, ये हमारे पति है, पत्नी है, ये है, वो है। अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग तत्व को हमने पूजा, इसीलिए हम सनातनी कहलाए गए। और इसीलिए सनातन को किसी एक दायरे में बांधना, एक सीमा रेखा में कैद कर पाना संभव ही नहीं है। सो माँ मातंगी का आप विजुअलाइजेशन करेंगे, उनकी धारणा करेंगे, उनके स्वरूप को अंतर मन में स्थापित करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने गोद में ला दीजिए, कंफर्टेबली बैठ जाइए और जितना हो सके उतना गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। आंखें बंद कर दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। गहरी सांस लीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मन को उस प्रकृति के साथ, कुदरत के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिनके आसपास हमारा जीवन जो है वो विचरण करता है। मन को संपूर्णतया शांत भाव के साथ ईश्वर के चिंतन में एकाकार होने के लिए तैयार कीजिए। जो भी विचार, व्यथाएं आपके मन में चल रही हैं, उन सभी को थोड़ी क्षणों के लिए विराम दे दीजिए। अपनी आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और धारणा कीजिए कि अब आप एक अंधकार से होकर गुजर रहे हैं। आपके सामने केवल और केवल अंधकार ही व्याप्त है। कि मानस पट पर अंधेरे के अतिरिक्त और किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी अंधेरे में आगे बढ़ते बढ़ते आप पहाड़ी तक आ पहुंचे हैं। ये जो पहाड़ है वो अनेक पहाड़ियों से बना हुआ है। छोटे छोटे पहाड़ से मिलकर एक बड़ा पहाड़ जो है वो आपके सामने
खड़ा है, बर्फ से आच्छादित पहाड़, जहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है। आप जहां तक देख पा रहे हैं, चारों दिशाओं में केवल बर्फ की सफेदी आपको दिखाई दे रही है। उसके ऊपर आप चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। आपके मुख से केवल देवी माँ का नाम जप चल रहा है। ओम श्री मात्रे नमः। 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 उच्चारण करते हुए आप निरंतर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। इस पहाड़ की जो ठंडक है, वो जो मौसम है, अत्यंत आह्लादक है, अनुपम है। इसके सौंदर्य का वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। पूरा पहाड़ बर्फ से घिरे होने के बावजूद वहां पर आपको कातिल ठंड का अनुभव नहीं हो रहा है। इस मौसम को आनंद लेते लेते ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। बीच रास्ते में कई सारे बर्फीले प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं। उन सभी को प्रेम भरी निगाह के साथ देखते देखते आप अपनी यात्रा को जारी रख रहे हैं। शुद्ध प्राण वायु ग्रहण करते करते आपके फेफड़े जो है नवपल्लवित हो चुके हैं। इतनी खुली हवा, शुद्ध हवा का अनुभव आपने पीछे कब किया था, आपको स्मरण नहीं है। शहरों के उस प्रदूषण से बहुत दूर, संपूर्ण एकांत में, संपूर्ण शांत स्थान पर एकाकी होकर आप उस पर्वत के ऊपर चल रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वहां पर आपको एक पत्थर की गुफा दिखाई दे रही है, जो बर्फ आच्छादित है। बर्फ के कारण पत्थर का रंग दिखाई नहीं दे रहा, किंतु आकार स्पष्ट है। और ये गुफा अपने आप में बहुत विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ से निरंतर ओमकार की ध्वनि उत्सर्जित हो रही है। ओ, 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 प्रणवनाथ निरंतर उस गुफा से आ रहा है।
और वो ध्वनि इतनी मधुर है कि आप मंत्रमुग्ध होकर बस उस ध्वनि को सुने जा रहे हैं, जैसे आपके ऊपर सम्मोहन क्रिया हुई हो। उस भाव में स्थित होकर आप उस गुफा की ओर खींचे चले जा रहे हैं। बहुत सुमधुर सुवास वहां से आ रही है। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही अंदर से चंदन, गुलाब, कमल की एक मिश्रित सुवास आप अनुभव कर रहे हैं। ये वो सुवास है जो आपके घर के मंदिर में आपने कई बार अनुभव की है। जब आप धूप प्रज्वलित करते हैं, उस समय पर जो दिव्य सुवास का आप अनुभव करते हैं, उससे भी अनेक गुना तीव्र, मन को मुग्ध कर देने वाली सुवास जो है, सुगंध, उसका अनुभव आप यहाँ से कर रहे हैं। अब आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं उस गुफा के भीतर जाने से। एक कदम अपने आप गुफा के अंदर अपने पैर रख चुके हैं। जैसे जैसे आप गुफा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको सामने दिव्य तेजस्वी प्रकाश दिखाई दे रहा है। और ये मात्र एक स्रोत से नहीं आ रहा, दो तेजोपुंज जो है, दिव्य बिंदु, उनसे आ रहा है। आप और भी समीप जा रहे हैं, और ये तेजोपुंज अब दो से चार हो चुके हैं। चार दिव्य स्वरूप पाषाण शिलाओं के ऊपर विराजमान है। दो अलग अलग पाषाण शिलाएं हैं बैठने के लिए। दो बड़े पत्थर, इतने बड़े कि उसके ऊपर कई सारे मनुष्य जो है वो आराम से अपनी साधना कर पाए। उन दो पाषाण शिलाओं के ऊपर ये चार स्वरूप विद्यमान है। सबसे पहले आपकी दृष्टि पहली पाषाण शिला के ऊपर स्थिर हो जाती है, जहां पर एक दिव्य स्वरूप, पुरुष स्वरूप विद्यमान है, जिन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, जिनके एक हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में कमल है, पद्म, तीसरे हाथ में गदा है, चौथे हाथ में शंख है। इनका रंग नीले रंग का है। ये जो वर्ण है वो सूचित करता है कि ये साक्षात महाविष्णु है, जो आपके सामने दिव्य और प्रेम से परिपूर्ण मुस्कान दे रहे हैं। उनके बाजू में शक्ति स्वरूपा विराजमान है, महाशक्ति।
जिन्होंने अनेकानेक अलंकार आभूषणों को धारण किया हुआ है। लाल रंग की साड़ी में वे वहां पर विद्यमान है। पैरों में घुंघरू एवं सभी उंगलियों में उन्होंने अंगूठियों को धारण किया हुआ है। उनके ललाट पर एक लाल तिलक है, कुमकुम तिलक। और उस कुमकुम तिलक के ऊपर सफेद चंदन का एक तिलक है, जो सूचित करता है प्रकृति और पुरुष के तत्व को, जिससे ये पूरा विश्व बना हुआ है। वे हैं महालक्ष्मी। उन दोनों को आप साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उनके बाजू में जो पाषाण शिला है, उनके ऊपर एक और देवी स्वरूप विद्यमान है। इन्होंने अपनी गोद में गजमुख धारी एक बालक को धारण किया हुआ है। इनकी सूंड, छोटी सी सूंड हवा में लहरा रही है। उनका ललाट तेजस्वी है, तेजोमय है। ये है जगत जननी दुर्गा पार्वती। उनके पास जो विद्यमान है, उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगाई हुई है, स्मशान की राख। गले में वासुकी नाग सुशोभित है। उनकी पाषाण शिला के पास एक त्रिशूल रखा गया है, जिसके ऊपर नाद ब्रह्म स्वरूप, जहां से मंत्रों का प्राकट्य हुआ, वैसे डमरू को बांधा गया है। इस स्वरूप की जटाओं में गंगा बह रही है। ये वो स्वरूप है जो अपने महातांडव के लिए जाने जाते हैं। समस्त सृष्टि के अंत में, महाकल्प के अंत में, इनका महातांडव समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर लेता है। एक ही क्षण में सारे स्वरूप, सारे ब्रह्मांड, सारी आकाश गंगाएं, सभी भूलोक, सभी जीव, 84 लाख योनि एक के बाद एक इनके भीतर समाहित हो जाते हैं। यही तो है महेश्वर, देवाधिदेव, महादेव, शिव शंभु, शंकर भगवान। ये वो शंभु है जो सृष्टि को चलाते हैं। प्रलय के काल पर इसका नाश भी करते हैं। और इनके पास जो देवी स्वरूपा है, वो साक्षात माँ ललिता है, जो उस महातांडव की एकमात्र साक्षिणी होती है और बन जाती है महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी, महाकामेश महिषी, महात्रिपुर सुंदरी। यही तो है
देवी माँ त्रिपुर सुंदरी। उस समय पर, उस क्षण आपको ये अनुभूति होती है कि आप कोई सामान्य पहाड़ पर नहीं हैं। ये साक्षात कैलाश भूमि है। ये वो स्थान है जहाँ पर साक्षात सप्त ऋषियों ने महादेव से मंत्रों का ज्ञान लिया था और पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रचार किया था। ये वो स्थान है जहाँ पर अनगिनत ऋषियों मुनियों की दिव्य आत्माएं, सिद्धात्माएं, महात्माएं आकर ठहरी हैं। ये वो स्थान है जहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी इस स्थान पर अतिथि के स्वरूप में आए हैं और आप भी उनकी संतान बनकर कैलाश पर एक मेहमान के स्वरूप में आए हैं। आपके द्वारा भगवान महादेव और माँ अम्बा को भोजन अर्पण किया जा रहा है। दंडवत प्रणाम कर आप एवं भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तीनों साथ में मिलकर जगत धाता को, जगत पिता को और जगन माता को भोजन अर्पण कर रहे हैं। महादेव और माँ दोनों अत्यंत प्रेम से उस भोजन का आस्वाद ले रहे हैं। भोजन करते वक्त उनके प्रत्येक निवाले से भोजन के कुछ कण नीचे गिर रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं। कुछ ही समय के बाद महादेव के द्वारा एवं माँ के द्वारा आपको भी भोजन कराया गया। प्रत्येक निवाले को साक्षात जगदम्बा के हाथों से ग्रहण कर आपका मन अत्यंत प्रफुल्लित हो चुका है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी भी आप ही के साथ भोजन कर रहे हैं। इन चारों महान दिव्य आत्माओं के बीच में बैठकर आप भी स्वयं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यवान मान रहे हैं। उसी क्षण पर महादेव और भगवान विष्णु के द्वारा जो टुकड़े जमीन पर गिरे थे, जो भोजन जमीन पर गिरा था, उन टुकड़ों से एक कुमारी का प्राकट्य हो जाता है। एक दिव्य स्वरूप हवा में प्रकट हो जाता है। उनका वर्ण जो है वो हरे रंग का है। उनकी आयु 16 वर्ष की है। एक नव युवती, ऐसी कुमारी जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने प्रकट होकर सबसे पहले आपसे भोजन मांगा, किंतु ये क्या, आपकी थाली में भोजन तो बचा ही नहीं। जो कुछ भी बचा है
वो झूठा है, और एक झूठा भोजन आप एक दिव्य स्वरूप को कैसे दे सकते हैं, ये सोचकर आप संकोच में है। किंतु जो स्वरूप प्रकट हुआ है वो आपकी मनोव्यथा को जान गया है। सामने से आकर उन्होंने अपनी थाली से आप ही के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया है। महादेव, जगदम्बा, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ये दृश्य को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। ये उनकी लीला है, किंतु आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। मात्र दिव्य भाव में स्थित होकर इस लीला के साक्षी, एक विटनेस के स्वरूप में, साक्षी भाव में स्थित होकर वहां पर इस दृश्य का रसास्वाद ले रहे हैं। भोजन संपन्न होने पर वो स्वरूप, जो एक युवती का स्वरूप है, कुमारी है, वो अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है। और देखते ही देखते उनका कद, उनका आकार बढ़ने लगता है। एक ही क्षण में तेजस्वी सूर्य के समान प्रत्येक कण में, समस्त ब्रह्मांड में वे व्याप्त हो जाती हैं। उसी समय पर उनके द्वारा ये उद्घोषणा होती है कि आपने मुझे बहुत ही प्यार से, निस्वार्थ भाव से, स्नेह के साथ अपना भोजन अर्पण कर दिया। मैं आपको वरदान देती हूँ, पूरे विश्व में कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। प्रचंड बुद्धिमता के साथ, प्रखर बौद्धिक संपदा के साथ आप इस जगत में विचरण करेंगे। मैं, देवी मातंगी, आपके भीतर विद्यमान होकर वो प्रत्येक कदम पर, प्रत्येक निर्णय में योग्य रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करती रहूंगी। और आपकी थाली से मैंने भोजन लिया, झूठा भोजन लिया, इस कारण से मैं जानी जाऊंगी उच्छिष्ट चांडालिनी के स्वरूप में। और देवी माँ ललिता के साथ विचरण करने के कारण लोग मुझे जानेंगे राज मातंगी के स्वरूप में। 10 महाविद्याओं की साधना में मेरी साधना नितांत आवश्यक मानी जाएंगी। मैं प्रत्येक साधक को दिव्य तेज अर्पण करूंगी, महाज्ञान अर्पण करूंगी। सरस्वती बनकर आपकी जिह्वा पर, आपकी जीभ पर स्थापित हो जाऊंगी। कि मुख से निकलने वाले प्रत्येक वचन, प्रत्येक विधान, प्रत्येक वाक्य सत्य साबित होंगे। आपकी बात को कोई मिथ्या साबित नहीं कर पाएगा। ये मेरा वचन है और वरदान भी। आप भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। तो पहली बार
आपके मुख से देवी मातंगी के गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है। ओम मातंग्ये च विद्महे उच्छिष्ट चांडालिन्ये धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम मातंग्ये विद्महे उच्छिष्ट चांडाल्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम मातंग्ये च विद्महे उच्छिष्ट चांडाल्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। उसी क्षण देवी माँ मातंगी आपके आज्ञा चक्र में सदा सदा के लिए स्थापित हो जाती हैं। के भीतर ज्ञान के प्रकाश को भर देती हैं। इस पर्वत को चढ़ते वक्त आपके मन में जो अंधकार व्याप्त था, इस अंधकार से निकलते वक्त आप अंधेरे का अनुभव कर रहे थे, उसी स्थान पर अब देवी माँ का दिव्य प्रकाश भर चुका है। अब आपके मन के नेत्रों के सामने अंधकार नहीं किंतु सूर्य का प्रकाश व्याप्त है। उसी स्थान पर दोनों जगत पिता भगवान विष्णु, महादेव एवं माँ लक्ष्मी तथा जगदम्बा को नमन कर, साष्टांग प्रणाम कर पुनः उस स्थान से लौट रहे हैं। मन में कृतज्ञता के भाव को लेकर भगवान के साथ जो भोजन किया उसके स्मृति को लेकर, उस स्मरण को लेकर आप पुनः अपने अंतर मन में लौट रहे हैं। फिर से एक बार आपका ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, ललाट के ऊपर केंद्रित हो चुका है। गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब आप आंखें खोल सकते हैं। आज हमने जो विजुअलाइजेशन किया ये भी देवी माँ के प्राकट्य की एक कथा थी, जहाँ पर एक बार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी महादेव के वहां पर गए थे, कैलाश पर्वत पर गए थे और उन्हें भोजन करा रहे थे। तो महादेव और माँ के द्वारा जो भोजन हुआ, उस भोजन से जो कण गिरे, उस निवाले से जो जूठा भोजन गिरा, उस कण से एक स्वरूप का प्राकट्य हुआ। 16 वर्ष की एक युवती, कुमारी, और वे थी देवी माँ मातंगी। और उन्होंने प्रकट होते ही तुरंत भगवान से भोजन मांगा कि मुझे भोजन कराइए, और वो भी उच्छिष्ट भोजन मांगा। उच्छिष्ट यानी कि लेफ्ट ओवर, वो भोजन जो देवताओं के द्वारा किया गया था, उनके इष्ट के द्वारा किया गया था, वही भोजन उन्होंने मांगा। नया भोजन नहीं मांगा, नई जो पकवान है, नई सामग्रियां हैं, वो नहीं मांगी उन्होंने। तो ये जो उच्छिष्ट भोजन उन्होंने किया, जो भगवान का लेफ्ट ओवर फूड था, वो देवी माँ मातंगी ने ग्रहण किया। इस बात से भगवान महादेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें एक नाम दिया, उच्छिष्ट चांडालिनी। अब उच्छिष्ट चांडालिनी का ये जो स्वरूप है वो भगवान उच्छिष्ट गणपति के साथ भी कनेक्टेड है। उनकी जो अर्धांगिनी है, उन्हें भी उच्छिष्ट चांडालिनी कहा जाता है, या फिर देवी विघ्नेश्वरी कहा जाता है। आ, उन्हें भी नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है।
तो कहीं ना कहीं देवी माँ मातंगी का एक सीधा संबंध जो है वो उच्छिष्ट गणपति के साथ भी है। और भगवान महादेव के द्वारा ये वरदान दिया गया देवी माँ मातंगी को कि आज से जो भी साधक आपकी उपासना करेंगे, आप उनके मन में बुद्धि के स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे, आप उनके सभी शत्रुओं का नाश करेंगे, और इस सृष्टि में जो भी एक समृद्धि का भाव है, वो साधक उस भाव को प्राप्त करेंगे, चाहे वो भौतिक समृद्धि की बात हो, चाहे वो आध्यात्मिक समृद्धि की बात हो। तो इसी थॉट के साथ आई पर्सनली थॉट कि आज वो ध्यान करते हैं जहां पर देवी माँ साक्षात पहली बार प्रकट होती है, जहां पर पहली बार उनका जो गायत्री मंत्र है, उच्छिष्ट चांडालिनी गायत्री मंत्र अथवा मातंगी गायत्री मंत्र, वो जब पहली बार प्रकट हुआ, उसका उच्चारण जब पहली बार किया गया, वो क्षण कैसी होगी, वो अवसर कैसा होगा, वो पर्व कैसा होगा, वो समय कैसा होगा, उसे रिविजिट करते हैं एक बार। तो इसीलिए समय में थोड़ा पीछे जाकर आज हमने मातंगी माँ के प्राकट्य के साथ जुड़ा हुआ एक विजुअलाइजेशन किया। उसी समय पर देवी माँ का एक गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जिसका उच्चारण हमने किया, ओम मातंग्यै च विद्महे उच्छिष्ट चांडाल्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गायत्री व्याहरति ही संध्या द्विजवृंद निषेविता। ललिता सहस्त्र नाम में ये एक विधान आता है, गायत्री व्याहरति ही संध्या द्विजवृंद निषेविता, अर्थात माँ गायत्री जो है वो एक ललिता माँ का ही दूसरा नाम है। तो जब जब आप कोई भी देवी देवता के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, चाहे वो हनुमान गायत्री मंत्र हो, कृष्ण गायत्री मंत्र हो, शिव गायत्री मंत्र हो, देवी गायत्री मंत्र हो, या फिर अन्य कोई भी XYZ गायत्री मंत्र का उच्चारण आप करते हैं, तब तब आप अल्टीमेटली माँ ललिता को ही स्मरण में ला रहे हैं, उनका ही स्मरण कर रहे हैं, उनको ही जागृत कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है और अंत भी उन्हीं पर होता है। शीश धवन जो महातांडव की साक्षिणी है, शीश धवन जो रुद्र के स्वरूप में प्रकट होकर तांडव करती है, माँ ही वो स्वरूप है जो ब्रह्मा के स्वरूप में प्रकट होकर संसार को चलाता है, माँ ही वो स्वरूप है जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप में प्रकट होकर इस सृष्टि के नियंता के स्वरूप में सृष्टि को धन धान्य प्रदान करते हैं। सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारिणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी। ये समस्त प्रक्रिया जो पंचकृत्य है देवी माँ के द्वारा किए जाते हैं, सृष्टि, स्थिति, विनाश अथवा संहार, तिरोधान और अनुग्रह, ये पांच कृत्य के माध्यम से देवी माँ सृष्टि को उनका निर्माण करती हैं, चलाती हैं, नए सिरे से तैयार करती हैं एक नए ब्रह्मांड के निर्माण के लिए, और संहार भी करती हैं। तो इसी कारण से ये जो स्वरूप है इनका, जो गायत्री मंत्र है और अन्य जो कोई भी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, दे आर कनेक्टेड टू माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी एज पर ललिता सहस्रनामा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं, बट बिफोर वी डू दैट we'll do a brief and short Q&A with none other than Vikram. Thank you, Brahmachari ji. That was lovely. So, before we get into questions, Brahmachari ji, just an appeal to everybody watching the session. If you could, we have many people who are, using the app and taking value and also giving wonderful feedback, also informing us about bugs, which that is also helping, and that's, we are trying to address all the issues as well. But if you all could be kind enough to actually please give a written review and rating in the stores, it will be very, very helpful for other sadhaks to know more about the app, because really the only way people find out about us are through the stores. When somebody lands there, again, it's a 400, 500, 600 MB application. Not everybody will immediately go about installing the app, but your reviews, your rating will help a lot. So, a sincere request for those of you who have not already given a review or rating to please do so. That will help us, that will help new sadhaks, it will help attract more people who are interested in sadhana into the fold. Thank you very much for those of you who have already given the rating, and thank you for all of those who will be giving the rating.
and review as well. So, quickly coming to questions, Brahmachari ji, there are a couple of ones that have come through. One is somebody says that they don't feel like coming out of the visualization, or even getting, feeling like, okay, they don't want even to come back into life at the end of visualization. So is what to do when you have such thoughts or feelings at the end? देखिए, विजुअलाइजेशन का पर्पस ही ये है कि आप निरंतर उस भाव में स्थित रहें। तो इसका टेक्निकली कोई आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इससे बढ़िया अनुभूति और कोई हो नहीं सकती कि आप उसी भाव में, उसी चिंतन में लीन रहना चाहते हैं जहाँ पर देवी माँ का स्वरूप विद्यमान है। पर वी ऑल हैव वर्क टू डू। सो आप अपने भौतिक संसार में रहकर जितना हो पाए उतना देवी माँ का स्मरण कीजिए। पूरे दिन में आप कम से कम थोड़ा समय निकाल कर धारणा के इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर आप अपने पूजा स्थान में बैठकर एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करने के साथ साथ इसी विजुअलाइजेशन को अपने तरीके से रिविजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप देवी माँ को अपने पसंदीदा पकवान जो है भोजन वो खिलाइए। देवी माँ आपको खिला रही हैं, आपको भोजन करा रही हैं, आपको सहला रही हैं, आपको नहला रही हैं, आपको तैयार कर रही हैं, आपको वस्त्र पहना रही हैं। एक बच्चा बनकर, एक संतान बनकर, एक बालक बनकर माँ के साथ खेलिए, माँ के सानिध्य में रहिए। जितना हो सके उतना दिन में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, जो भी आपका मन करे, जितना आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्ड हो पाए विजुअलाइजेशन के लिए, उसके दौरान उतना आप प्रयास कीजिए देवी माँ के भाव में लीन रहने के लिए, बिकॉज दिस विल रियली हेल्प। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अपने अनुभव की बात करने में ज्यादा आनंद आता है, रादर देन जस्ट पढ़ी हुई बातें या फिर जो बातें मैंने देखी हुई है कहीं पर, किसी से सुनी हुई है। वो कहने से ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको अपनी बात बताऊं। तो मैं अभी जो आपको करा रहा हूँ, मैं जो पिछले 9 दिन से हम ये साथ में मिलकर जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मैं अपनी साधना में यही करता हूँ। जब मंत्र का जाप होता है या फिर मेरी साधना चल रही होती है, तब मैं निरंतर एक ही प्रयास करता हूँ कि मैं जिनको पूज रहा हूँ, मेरे लिए मेरे मेरी साधना, मेरे साध्य और मेरे साधन, तीनों मेरे गुरु हैं। तो मैं निरंतर उनका ध्यान करता हूँ, मैं आ, उनका स्मरण करता हूँ, मैं उनको पूजता हूँ। आप जिनके प्रति आपको आसक्ति है, जिनके प्रति आपको भाव है, भक्ति है, आप उस स्वरूप को धारण कर लीजिए और विजुअलाइजेशन कीजिए। यदि दिन में एक बार ये करेंगे धीरे धीरे, तो आप एक समय पर इतना वैराग्यपूर्ण जीवन प्राप्त कर लेंगे जहां पर संसार में रहते हुए भी आप उससे अलिप्त नहीं रह आप उसमें लिप्त नहीं रह पाएंगे, उससे अलिप्त हो जाएंगे धीरे धीरे। तो टारगेट यही है कि संसार में रहकर जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हम कुछ ऐसा करें कि हम निरंतर सतत भगवान के, ईश्वर के स्मरण में लीन रह पाए। तो यदि आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग, ये होना चाहिए। और हमें बाहर आना भी नहीं है, जितना हो पाए उतना। ये रात को रखने का कारण भी यह है कि ताकि आप ये सेशन एंड करके यहाँ पर यहाँ से अलग होकर फिर आप इसी भाव में लीन रहे और इसी भाव के साथ आप निद्राधीन हो पाए, सो पाए। तो बाहर क्यों आना है आपको? यदि इस भाव में रह पा रहे हैं, तो उससे बड़ा वरदान, उससे बड़े आशीर्वाद, उससे बड़ी कृपा और कोई हो नहीं सकती। सो बी इन दैट भाव, दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन। Thank you very much, Ajay. So one other question that came through is when listening to the chant of Swamiji for a mantra in the Tantra Sadhana app, should one chant it or just listen? Is there a best practice to follow? शुरुआती समय में जब तक आपको उच्चारण नहीं आता, जब तक आपको ध्यान श्लोक याद नहीं रह गया, तब तक आप ध्यान से स्वामी जी के स्वर को सुनिए। स्वामी जी जिस मंत्र का ध्यान श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, उस श्लोक के एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को, एक एक ऋचा को ध्यान से सुनिए और प्रत्येक अक्षर को मन में विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए धारणा के माध्यम से। मान लीजिए कराल वदनाम घोराम, तो जब ये बोला जा रहा है तब कराल ये शब्द आपके मन में लिखा हुआ आना चाहिए।
जब इस तरीके से आप सुनेंगे ध्यान श्लोक को, तब वो अपने आप आपके जीवन में फलीभूत होना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में माँ की कृपा जो है वो बरसना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिस इज द वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन दैट वी नीड टू प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ध्यान श्लोक को शुरुआती दिनों में ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिए, उसे धारण करने का प्रयास कीजिए धारणा के माध्यम से। एंड देन जब आपको अब विश्वास हो जाए कि हाँ मैं ये मंत्र पढ़ सकता हूँ, या फिर उच्चारण कर सकता हूँ इसका, मुझे ये मंत्र याद रह गया है, श्लोक याद रह गया है, उसके बाद प्रयास कीजिए पूरे दिन में निरंतर जब भी आपको समय मिले इस इन मंत्रों का, इन श्लोकों का उच्चारण करते रहिए। चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे आप वॉशरूम में हैं, चाहे आप किसी भी स्थान पर हैं, सूची अशुचि यानी कि शुद्धि और अशुद्धि का ख्याल रखे बिना आप महाविद्याओं का पूजन हर हमेश कर सकते हैं। आपको किसी स्थान को, किसी अवस्था को देखने जाने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, इस अवस्था में बैठकर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सभी अवस्थाओं में 24/7 जब भी आपको समय मिले, तब मन को किसी और ख्यालों में ऑक्यूपाई किए बिना, या फिर गॉसिपिंग में अपने आप को ऑक्यूपाई किए बिना, या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में अपने आप को ऑक्यूपाई किए बिना देवी माँ की भक्ति में लीन हो जाइए, चाहे वो ध्यान श्लोक को सुनने के माध्यम से हो या फिर उसके उच्चारण मात्र से हो। सो दैट्स माय आंसर। Thank you, Brahmachari ji. Uh, some of you who are asking questions on, well, I finished 11 yajnas, it will be completed soon, but I don't want to start Shav Sadhana. I want to know more about it. Please attend tomorrow. We'll be announcing a few things, and there'll be a live workshop that we will be conducting specifically for Makali Sadhana. Please attend that, and we will tell you exactly how to go about doing it. There's nothing to be afraid. You are welcome to start Shav Sadhana as soon as you finish the preparation practices. And for those of you who are having any kind of app issues, please do write to us, serve@tantrasadhana.app. You're welcome to reach out in the group as well. And whenever we open it up, or please do write to us, because then we will definitely get back to you by checking what's the correct recourse for you is. Um, Yes, so some of you are asking questions about Dhyan Shlok, Secret Shrine, whether Secret Shrine will reappear. Yes, it will reappear on special days. We are planning for many such events, many special days, all of which will be unfolded. Please be in the Tantra Circle group. We will put up a reminder there, information there as well, so that you can be prepared and plan your time also. We are very mindful of your time. We will make sure that you know exactly how much time to invest, and which are those special days which we should ideally not miss praying to Ma or the particular Mahavidya. Brahmacharya ji, one more question that came is for somebody who was saying, while doing the Dhyan Shlok or Ucharan, sometimes different kinds of thoughts, sexual thoughts arise at the end or at some point in time inadvertently. Does it mean anything? Does it mean it's negative? Should one try to, what should one do in such a situation? मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले ही कहा था कि जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब आप साधना करने के लिए बैठते हैं, जप करने के लिए बैठते हैं, तब ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया है और पहले हलाहल विष ही निकलेगा, जहर ही निकलेगा। तो मन की जो वृत्तियां हैं, नकारात्मक वृत्तियां अथवा विकार और विचार, ये तीनों पहले ही आएंगे और बार बार ये प्रयास करेंगे आपको अपने मार्ग से भटकाने का। बार बार ये प्रयास होगा कि आप अपने गिल्ट में मर जाए। अपराध बोध के कारण एक ऐसा भाव है जहां पर बड़े बड़े साधक ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, मुझे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, अरे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, फिर मुझे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं। वो आएंगे इनिशियल डेज में, चाहे वो किसी भी प्रकार के विकार हो। मात्र यहाँ पर काम वासना की बात नहीं हो रही। किसी के भीतर अहंकार का भाव प्रबल है तो वो प्रकट होगा, किसी में क्रोध ज्यादा है तो वो एक सरफेस लेवल पर आ जाएगा, किसी में ईर्ष्या द्वेष का भाव ज्यादा प्रोमिनेंट है तो वो सरफेस लेवल पर आ जाएगा। अपने आप को साक्षी भाव में रखिए, किसी भी भाव के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी मन में आपको नकारात्मक विचार आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। एक सिनेमा चल रहा होता है ना, एक फिल्म, उसे आप कैसे अपनी सीट पर बैठकर देखते हैं, वैसे उस थॉट के ऊपर
कॉन्सेंट्रेट किए बिना ये सोचिए, ठीक है मुझे ये थॉट आया, ये विचार मुझे आया, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ये खेल का ही एक हिस्सा है, जो डिवाइन प्ले चल रहा है उसका एक हिस्सा है ये। और ये जहर निकला है मेरे मन से, अब निकल गया, ठीक है, कुछ और निकलेगा, निकलने दीजिए। कीप वॉकिंग द पाथ, डू नॉट स्टॉप। जब आप रुक जाएंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किंतु कभी कभार ये होगा कि आप भाग पाएंगे। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर भाव बहुत ज्यादा उमटेगा आपके भीतर, भक्ति जो है वो उमटेगी। उस दिन आप हो सकता है एक मैराथन रेस जो है वो दौड़ ले। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आप चल पाएंगे, सिर्फ जॉगिंग कर पाएंगे, दौड़ पाएंगे थोड़ा बहुत। और कई स्थान ऐसे होंगे, कई दिन ऐसे होंगे जहां पर आप बहुत ही स्लोली वॉक कर पाएंगे, जैसे एक स्पाइन पेशेंट वॉक करते हैं ना, उतना स्लोली कई बार आपको अपना मन जो है वो चलाना पड़ेगा। कई बार भाव नहीं आएगा, चाहते हुए भी आप ईश्वर में लीन नहीं हो पाएंगे। और कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको क्रॉलिंग करना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा जिसने चलना नहीं सीखा, वो जैसे धीरे धीरे चारों दोनों हाथों से और दोनों पैरों से जमीन पर रेंगता रेंगता चलता है ना, कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा कठिन होगा आगे बढ़ पाना, आपके भीतर भक्ति का भाव प्रकट ही नहीं होगा। किंतु उस दिन वो क्रोलिंग भी कर लीजिए, जैसे बच्चे को आप चलना सिखाते हैं, वैसे ही आप धीरे 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 चलते रहिए। फिर से उस दिन के बाद एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप फिर से मैराथन दौड़ पाएंगे, फिर से भक्ति का भाव प्रोमिनेंट होगा आपके भीतर। बट एक ही चीज को दिमाग में रखिएगा कि आपको रुकना नहीं है। एक ही बात को ठान लीजिएगा कि चाहे जर्नी फास्ट हो या स्लो हो, मुझे रोकनी नहीं है इस यात्रा को। अपने आप को रोकना नहीं है। चाहे विचार आए, चाहे विकारों का मन में भाव आए, चाहे वृत्तियां जो है वो आपकी प्रबल बन जाए, शुरुआत के टाइम में होगा ही होगा। और ये नहीं हो रहा है तो ही चिंता की बात है, तो समझ लीजिएगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। कोई इंसान पहले से ही सिद्ध पैदा नहीं होता, सिद्ध बना जा सकता है साधना के माध्यम से। तो यदि आपके मन में ये विचार नहीं आ रहे हैं, यदि आप शुरुआती दौर में इन चीजों से सफर नहीं हो रहे हैं, पीड़ित नहीं हैं, तभी आपकी यात्रा कुछ अलग दिशा में जा रही है, या फिर आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, ये मान लीजिएगा। किंतु अगर ये हो रहा है, ऐसे विचार आ रहे हैं, आपको इसी दिशा से आगे बढ़ना होगा। यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड दिस इज योर बिगेस्ट इंडिकेशन। क्योंकि आपको आगे बढ़ने से सबसे पहले आपका मन ही रोकता है, और कोई बाहर के शत्रु नहीं आते, और कोई शक्तियां आपको रोकने के लिए नहीं आती। आपका मन ही इस पाथ के ऊपर आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। और इसीलिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। कैसे भी थॉट्स आए, कैसे भी विचार आए, कुछ भी हो, सिर्फ एक ही चीज को याद रख लीजिएगा आज। इस विधान को गोल्डन लेटर्स में टाइप करवा कर चिपका दीजिए दीवार के ऊपर। वी डोंट नीड टू स्टॉप, वी डोंट वांट टू स्टॉप। अगर रुकेंगे नहीं तो जीवन में कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। मंजिल सभी की लिखी हुई होती है। किसी की मंजिल कल आ सकती है, किसी की एक दो दिन के बाद आ सकती है, किसी की 1 साल के बाद आएगी, किन्हीं की 10 साल के बाद आएगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यदि आप एक सफर के ऊपर निकले हुए हैं, एक जर्नी में निकले हुए हैं और आप कहीं पर पहुंचे ना हो। यदि आप चल रहे हैं, चाहे आप बस के थ्रू हो, टैक्सी के थ्रू हो, ट्रेन के थ्रू हो, या फिर एरोप्लेन के थ्रू हो, आप कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे ये आपके ऊपर आधारित होगा, लेकिन आप पहुंचेंगे जरूर। तो दिस इज द ओनली आंसर आई कैन गिव। Thank you so much, Brahmachari ji. I think we've answered most of the questions that have come, and we'll keep some for tomorrow. So tomorrow being the last day of this series, everyone who's watching, please, we welcome you all. Please attend. It's a special day. Ma Kamlatmika and Mahavidya will learn more about Ma, and then have the wonderful experience like today.
Brahmachari ji, today's session was amazing. A lot of people are saying so. Thank you very much for guiding us. And I see many of you have already written the reviews. Thank you so much. You guys are awesome. Really, it means a lot to us. And tomorrow we'll also have Priyanka Anand, our CEO, join us, as well as the important special announcement we're going to be made tomorrow. It's been quite a hectic last 3 4 weeks to plan, make this happen. What is that special secret thing? We will announce tomorrow. So please, I'll see you. We all will see you tomorrow, same time, 8 o'clock. Thank you for everything. Have a safe evening and happy chanting. Thank you very much, Hariji. Jai Shri Hari. Michelle, thank you, everyone. Thank you.